Yesterday we were studying about modern or long form of periodic table. Long form of periodic table is divided into 4 blocks: S, P, D and F, and 18 subgroups. As I told in the previous lecture, the group as defined by Mendeleev in his periodic table, the vertical column of the periodic table is called group. In modern periodic table, each group is divided into 2 subgroups, A subgroup as well as B subgroup. A total of 18 subgroups are present in the long form of periodic table. Whereas there are 7 periods in the modern or long form of periodic table as were in the Mendeleev's classification. Yesterday we draw the periodic table, long form of periodic table. So today we are continuing it. This is S block, in the center D block, on the right corner it is P block, and in the bottom F block. S block is divided into 2 subgroups, D into 10 subgroups, and P block is divided into 6 subgroups. Whereas F block is divided into 14 divisions. There are 7 periods in the long form of periodic table. As I told yesterday, the first period is composed of only 2 elements known as very short period, starting from hydrogen atomic number 1 and ends on helium atomic number 2. Then the second period comprises of 8 elements starting from lithium 3 and ends on neon 10. Two elements from S block and 6 from P block. The second period is called as first short period. Then third period starts from sodium 11 and ends on argon 18, again composed of 8 elements, 2 from S block and 6 from D block. It is also known as second short period. Fourth period comprises of 18 elements starting from potassium 19, 2 from S block, then 10 elements from D block and 6 from the P block. Ends on krypton 36. The fourth period is also called first long period. Then fifth period starts from rubidium 37, composed of again 18 elements, 2 from S block, 10 from D block,
and 6 from the p block, and ends on xenon 54. The fifth period is also called second long period. The sixth period, which is known as very long period, it is the largest period of the periodic table, composed of 32 elements, starting from cesium 55, 2 elements from s block. Then here in the first element of d block, element lanthanum, as I told in the previous class, atomic number 57. And after this lanthanum, there is a total 14 elements, starting from cerium 58 up to lutetium 71. These 14 elements are similar in properties to lanthanum. Therefore, these elements should be placed in this place in the long form of periodic table. चूँकि ये हमारी लॉन्ग फॉर्म जो है वो 2 डायमेंशनल है, लिहाजा एक प्लेस पर 15 एलिमेंट्स को प्लेस करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इन 14 एलिमेंट्स को बॉटम में रखा गया। सिंस दीज एलिमेंट्स फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथनम, देयरफॉर दे आर नोन एज लैंथेनॉइड्स और lanthanons. After lutetium, here D block continues with hafnium 72, and this period ends on radon 86 with a total of 32 elements, 2 from the S block, 14 from the F block, 10 from the D block, and 6 from the P block. Since it is the largest period of the periodic table, period number 6, and therefore it is also called very long period. Now the 7th and last period, composed of it is incomplete period, starting from francium 87, again here actinium atomic number 89. Once again, if these are 14 elements starting from thorium 90 up to lawrencium 103, they are similar in properties to actinium. Since they follow properties of actinium and they all should be placed here in the long bound periodic table, therefore they are also known as actinoids or actinones. Now after lawrencium, again D block continues. I have drawn periodic table up to 109 atomic number. Anil cordium 104 up to anil inium 109. Now there are 18 subgroups in the long form. This is first A group, second A, third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A, and zero group. This is first B group, second B, third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, and this is eighth group, composed of 3 subgroups, 8th A, 8B, and 8C group. Now towards the configurations of these groups, S1, S2, D1, D2, D3, should be D4, but in actual practice we observe D5 configuration. D5, D6,
D7, D8. Again, it should be D9 as per sequence, but the correct configuration is D10, and this is D10 also. Whereas in P block, P1, P2, P3, P4, P5, and here P6 except helium with a S2 configuration. Now we place some elements in the S, P and the first transition series, 3D series, because these elements are included in your syllabus of the inorganic chemistry. तो पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं. सेकेंड ए ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. The 3D series composed of scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Here cadmium, mercury, coinage metals, copper, silver, then gold, nickel, palladium and then platinum. Here the element is yttrium. Now come towards the third A group, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, carbon, silicon, germanium, stannum and plumbum. Then fifth A group, nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium, bismuth, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Whereas seventh A group halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Now, how we can predict the electronic configuration of any elements? Now we move towards the general configuration of each block. First of all, S block, general electronic configurations. S block. The general configuration of S block elements is either NS1 or NS2. First A group, the general configuration is NS1. What is N? N is the principal quantum number. In long form of periodic table, the number of period is the principal quantum number, whereas S, either 1 or S2, is the azimuthal quantum number, which is obtained from the group number. First A group with S1 configuration, second A group with S2 configuration. So if you find to general configuration or configuration of any element in the S block, for example sodium, we take 3 from the period and S1 from the group. The final shell configuration is 3S1. Similarly, beryllium from the second A group, 2S2. What is the configuration of beryllium? 2S2. Strontium, 5S2. Potassium, 4S1. Francium, final shell configuration is 7S1. Barium, 6S2. So we can say what is the trend of electronic configuration in the first A group? Hydrogen 1s1, lithium 2s1, sodium 3s1, potassium 4s1, 5s1, 6s1 and then francium 7s1. Second A group 2s2, magnesium 3s2, calcium 4s2, strontium 5s2, barium 6s2, radium 7s2. As we run from top to bottom in both groups, the azimuthal quantum number remains same.
in the first a group S1 and second a group S2. जबकि नीचे ऊपर से उतरते हैं हम तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाता है. इसका मतलब है विद इन ए ग्रुप एजिमुथल क्वांटम नंबर रिमेन सेम, whereas just change in the principal quantum number takes place. So first a group की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, NS1, और सेकेंड ए ग्रुप की NS2. Now we move towards P block. The general configuration of P block is NS2 NP1 to 6, NS2 NP1 से लेकर NP6 तक. अगर हम थर्ड ए ग्रुप की तरफ चलें, बोरॉन, what is the configuration of lithium? 2s1, beryllium 2s2, then boron 2s2 2p1. We take principal quantum number from the period 2s2 2p1. What is the configuration of boron? 2s2 2p1. How many electrons in the valence shell? 3. 2 electrons in the s orbital and 1 in the p orbital. यही वजह है कि बोरॉन is placed in the third a group of the periodic table. Then carbon, what should be the configuration? 2s2 2p2. क्या है configuration कार्बन की? 2s2 2p2. 4 electrons in the valence shell, 2 in the 2s orbital and 2 in the 2p orbital. After this, nitrogen 2s2 2p3. Fifth a group, 5 electrons in the outer shell. Oxygen 2s2 2p4, 2s2 2p5, and then neon 2s2 2p6. Similarly, if we take the configuration of silicon, belongs to the third period, 3s2 3p2. Selenium, final shell configuration is 4s2 4p4. Stannum, final shell configuration 5s2 5p2. Iodine, seventh a group, 5s2 5p5. So there are 7 electrons in its valence shell. Then gallium belongs to the fourth period, 4s2 and then 4p1. So how many electrons in the valence shell? 3. That's why it is placed in the third A group of the periodic table. Now we move towards the inert gases. Neon 2s2, this is the period number, 2s2 2p6, then 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, and then radon 6s2 6p6. Except this helium, ये बाकी रिमेनिंग जो 5 इनर्ट गैसेज हैं, इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. वी कॉल इट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. whereas there are 2 electrons in the valence shell of helium, which is also known as duplate configuration. So in this way we can predict the configuration of any p block element from this general configuration. Now the third one, d block. ये जो S and P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा S या P ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो हमेशा किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में फिल होते हैं. S and P ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज फिल इन दी आउटर मोस्ट शेल. जबकि D और F ऑर्बिटल जो हैं कभी भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में फिल नहीं होते इलेक्ट्रॉन. डी ऑर्बिटल हमेशा आउटर शेल से एक शेल यानी कि पेनल्टीमेट शेल या सेकंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और एफ ऑर्बिटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से 2 शेल अंदर यानी कि थर्ड लास्ट शेल के अंदर फिल होते हैं. तो यही वजह है कि जो डी ब्लॉक है इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 और इन सम केसेस NS1
or mostly NS2, n minus 1 D1 to 10. जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक की? NS1 और NS2, n minus 1 D1 to D10 configuration. Except these two groups, 6b and 1st b group. इन दो ग्रुप्स के अंदर आउटर शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनर शेल का जो d ऑर्बिटल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, और 1st b ग्रुप में इनर शेल के d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंस्टेड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स, एज पर a special rule of electronic configuration known as stable orbital concept. आज हम उसको डिस्कस करेंगे. चलिए ज़रा देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल स्कैनेडियम. व्हाट इज द पीरियड नंबर? 4, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4. 4s1 पोटेशियम, calcium 4s2, and then scandium 4s2, and after this d is starting. As I have told, d ऑर्बिटल हमेशा किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक शेल अंदर बढ़ता है. यही वजह है कि हमने आउटर मोस्ट शेल क्या है? n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने इसमें से 1 माइनस किया. अगर आउटर शेल 4 है तो 1 माइनस करेंगे 3d. सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैनेडियम? 4s2 3d1. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d1. देन टाइटेनियम 4s2 3d2. आफ्टर दिस वेनेडियम 4s2 3d3. then chromium, it should be 4s2 3d4, but in actual practice the correct configuration is 4s1 3d5. why? अभी मैंने कहा था कि एक स्पेशल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, हम उसी को भी डिस्कस करते हैं. ये ज़रा कंप्लीट करें, उसके बाद इसकी तरफ आते हैं. देन मैग्नीज 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8. अगेन कॉपर एज पर रूटीन क्या होना चाहिए? 4s2 3d9, बट द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10. अगेन अकॉर्डिंग टू द सेम कॉन्सेप्ट. देन जिंक 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन. Now what is stable orbital concept? According to the Aufbau principle, electrons are distributed among the orbitals according to their increasing energy order or decreasing stability order, or we can say electrons occupy stabilized most orbital. Now any orbital under 3 conditions becomes more stable. What are those 3 conditions? Either vacant orbital, or half filled or unpaired orbital, or completely filled or paired orbital. छोटा सा टेबल बना रहा हूं मैं. 3 कंडीशन कौन कौन सी? फर्स्ट वीकेंट और एम्प्टी. द सेकेंड इज हाफ फिल्ड or unpaired. Then completely filled or paired orbital. As we all know,
There are 4 types of orbitals: s, p, d and f. S orbital की maximum capacity 2 electron. If it is vacant then its configuration will be S0, और अगर half filled होगा तो configuration होगी S1 और completely filled होगा तो S2. P orbital maximum capacity is 6 electron. If it is vacant then P0, half filled P3, completely filled P6. D with capacity of 10 electron. If it is vacant then D0, half filled D5 and completely filled D10. Similarly F vacant F0, half filled 7 and completely filled F14. If we draw the configuration of either chromium or copper, I am writing the configuration of copper. Atomic number 29 with a configuration of 1s2, routine configuration, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. It should be 4s2, 3d9, which is wrong configuration. As per routine it should be 3d9, but the actual configuration of copper, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d9, which is incorrect configuration. It is high energy configuration. Why? These all orbitals are stable according to this table: s2, s2, p6, s2, p6 and 4s2. Then d9 is not present in this table. d9 is a higher energy configuration. D orbital belongs to the third shell and s orbital belongs to the fourth shell. There is a slight difference of energy in the 4s and 3d orbital. The energy of 4s orbital is slightly less than 3d. Therefore, electrons fill in the 4s orbital first and then move toward the 3d orbital. Now what happens in case of copper? One of the electron from 1s or 4s orbital jumps and goes to the next 3d orbital and the configuration changes to 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d10 instead of 4s2, 3d9, which is the correct configuration. Why? Because all these orbitals are now stable, low energy orbitals: s2, s2, p6, s2, p6, s1, 3d10, d10, all are present: s2, s2, p6, s2, p6, s1, 3d10. ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस में मौजूद है. सवाल ये पैदा होता है कि why any orbital under these three conditions becomes more stable? Only symmetrical condition any orbital becomes more stable. वो तमाम orbitals के जिसमें symmetry create हो रही हो. Since s orbital is composed of only one orientation, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो बिल्कुल स्टेबल होगा. एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे तो वो एक ही तरह की ओरिएंटेशन होती है. लेकिन चूंकि p की 3 ओरिएंटेशंस हैं, px, py, pz, अगर p0 कॉन्फ़िगरेशन है तो तीनों ऑर्बिटल वेकेंट होंगे. अगर p3 कॉन्फ़िगरेशन है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा विद सिमिलर स्पिन अकॉर्डिंग टू दी हुंस रूल. और p6 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ऑल 3 ओरिएंटेशंस ऑफ p ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड पेयर्ड or with 2 electrons with opposite spins. Therefore,
एक्सेप्ट दीज थ्री P0, P3 एंड P6, इफ यू टेक P1 कॉन्फ़िगरेशन, तो किसी एक ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी दो वैकेंट होंगी, सिमेट्रिकल नहीं होंगे। इसी तरह P2 कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी तो दो ओरिएंटेशंस PX, PY, PZ में से किसी कोई सी दो में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और तीसरी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होगी कंपैरेटिवली। तो यही वजह है कि डी की चूंकि 5 ओरिएंटेशंस होती हैं, dxy, dyz, dxz, dx², y², dz², तो अगर पांचों ऑर्बिटल वेकेंट हो तो स्टेबल होगा, या पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल होगा, और या फिर पांचों में दो दो इलेक्ट्रॉन हो तो इन तीन कंडीशन में जाकर ऑर्बिटल सिमेट्री अडॉप्ट कर लेता है। यही वजह है कि ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो एज पर दिस रूल, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 4s2 3d9 की बजाय एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s1 3d10। सिमिलर इज द केस विथ 6p ग्रुप, दैट इज क्रोमियम फैमिली। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एज पर रूटीन क्या होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन चूंकि d ऑर्बिटल d4 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होती तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 4s ऑर्बिटल एंड गोज टू द 3d ऑर्बिटल। That's why the configuration changes to 4s1 3d5, which is low energy configuration as compared to 4s2 3d4 configuration. So these configurations this configuration is correct according to the Offer principle. क्यों? इसलिए कि ये लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है बनिस्बत इस कॉन्फ़िगरेशन के, ये कंपैरेटिवली हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर द सेम रीज़न, यही वजह थी कि मैंने इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर D4 की जगह D5 और D9 की जगह D10 कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो इन दीज टू सब ग्रुप्स 6b एज वेल एज 1st p ग्रुप, आउटर शेल के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इन दोनों सब ग्रुप्स के अलावा बाकी तमाम सब ग्रुप्स के अंदर आउटर शेल का जो d ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। Then the fourth and last F block, the general configuration of F block is ns2 n-1 d0 or 1 n-2 f 1 to 14। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी एटम के अंदर जो d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होते हैं ये कभी भी आउटर मोस्ट शेल में फिल नहीं होते। d ऑर्बिटल हमेशा आउटर शेल से एक शेल अंदर यानी कि पेनल्टीमेट शेल, और f ऑर्बिटल आउटर शेल से 2 शेल अंदर यानी कि थर्ड लास्ट शेल पे फिल होता है। तो आउटर शेल है n, उसके बाद जब d ऑर्बिटल फिल होगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1। अगर आउटर शेल से फॉर 6 है तो d कौन सा होगा 5d, 6 - 1 5, एंड f विल बी 6 - 2 दैट विल बी 4f। तो इफ यू मूव टूवर्ड्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम विच इज द फर्स्ट f ब्लॉक एलिमेंट्स, सीजियम 6s1, बेरियम 6s2, फिर उसके बाद लेंथेनम क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d1। व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d1। आफ्टर दिस लेंथेनम द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू और नेक्स्ट एलिमेंट इज सीरियम। अब क्या होगा, जो अगला इलेक्ट्रॉन है दैट विल गो टू दी f ऑर्बिटल, और चूंकि आउटर शेल कौन सा है 6 एज आई हैव टोल्ड, अगर आउटर शेल 6 है तो f कौन सा फिल होगा 4, तो दिस विल बी 4f। तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम 6s2 5d1 देन 4f1। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल हो रहा है 4f ऑर्बिटल में, यही वजह है कि ये जो सीरीज है दिस इज कॉल्ड 4f सीरीज। सीरियम के बाद फिर ये 4f1 4f2, f1 से लेकर और ये f14 तक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगेन अंडर 2 कंडीशन, यहां पर हमने देखा d के अंदर 0 और 1 की ऑप्शन है। इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स d1 कॉन्फ़िगरेशन होगी, d ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2 जगहों पर
यहाँ पर और यहाँ पर D का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा F में, ताकि F6 को F7 बना दे और स्टेबल कर दे। इसी तरह से F13 को F14 बना दे ताकि वो भी स्टेबल हो जाए, और D में कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचेगा और वो D0 भी स्टेबल हो जाएगा विद द सेम कॉन्सेप्ट। तो चूंकि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, इसीलिए लैंथेनाइड सीरीज इज आल्सो नोन एज 4f सीरीज। जबकि हम एक्टिनाइड सीरीज की तरफ जाएंगे तो 5f ऑर्बिटल फिल हो रहा होगा। यही वजह है कि एक्टिनाइड्स आर आल्सो कॉल्ड 5f series. So these are the general configurations of all 4 blocks. Now we move towards why first B group is here, why this group is not designated as first B group. क्यों इस ग्रुप को फर्स्ट बी और इसको फर्स्ट बी डेजिग्नेट नहीं किया गया, इस तरफ आते हैं। देखिए, जो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, they are, as I have told, they are also known as representative or normal elements, and they are also known as A subgroup elements. Whereas D block and F block elements, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये सारे F block elements all belongs to the थर्ड B group। कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? थर्ड B group को। तो ये सब के सब थर्ड B group के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो D block या F block elements हैं, they belongs to the B subgroups. What are A subgroup and what are B subgroup elements? A subgroup elements वो होते हैं कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके आउटर शेल में फिल हो रहा होता है, आइदर S ऑर्बिटल में या P ऑर्बिटल में। जबकि B सबग्रुप वो एलिमेंट्स हैं कि जिनमें पार्शली फिल D ऑर्बिटल होता है, और D ऑर्बिटल भी जैसे कि मैंने कहा कि वो हमेशा इनर शेल के अंदर फिल होता है, सेकेंड लास्ट शेल के अंदर फिल हो रहा होता है। अब देखते हैं मिसाल के तौर पे दिस एलिमेंट पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19। इफ यू ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and then 4s1। There is, this is first shell 1s, is second shell, और third shell is composed of 3 orbitals 3s 3p and 3d. In case of potassium, this 3d orbital is vacant, ये खाली होता है, और इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में पहले चले जाते हैं बिकॉज इट possesses लो एनर्जी। लिहाजा फाइनल शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनर शेल का डी ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा हुआ होता है। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन द ग्रुप नंबर। वो क्या बताते हैं? ग्रुप नंबर बताते हैं। अगर इनर शेल का डी ऑर्बिटल वेकेंट है तो फिर उस सूरत में वो ए सब ग्रुप एलिमेंट होगा, लेकिन अगर इनर शेल का डी ऑर्बिटल फिल्ड हुआ है या उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, पार्शियली फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, तो फिर इट विल बिलोंग्स टू दी बी सब ग्रुप। सिमिलरली अगर हम कॉपर को देखते हैं, एटॉमिक नंबर 29, तो मैंने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, दोबारा बना रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन इट शुड बी 4s1 3d10। अब चूंकि 3d ऑर्बिटल इनर शेल को बिलोंग करता है, लिहाजा मैं उसको पहले लिख रहा हूँ, और 4s ऑर्बिटल आउटर शेल को बिलोंग करता है, इसलिए मैं उसको बाद में लिख रहा हूँ। ज़रा इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करते हैं। दोनों एलिमेंट के जो 4s ऑर्बिटल हैं, उन यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इन बोथ केसेस वन इलेक्ट्रॉन इज इन द आउटर मोस्ट शेल, बोथ बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। लेकिन अगर हम इनर शेल के डी ऑर्बिटल को कंपेयर करें पोटेशियम और कॉपर के, तो इनर शेल ऑफ पोटेशियम जिसका जो डी ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, इट इज़ वेकेंट, जबकि कॉपर के इनर शेल का डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। Therefore, potassium is placed, both elements belongs to the first group. अब चूंकि इनर शेल
पोटेशियम का वेकेंट है 3d ऑर्बिटल, लिहाजा इसको A सब ग्रुप में रखा गया। और कॉपर के इनर शेल यानी कि 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लिहाजा इसको B सब ग्रुप में रखा गया। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि मेंडलीव ने अलकली मेटल यानी कि पोटेशियम फैमिली और कॉपर क्वाइनेज मेटल्स इनको एक साथ ग्रुप टुगेदर कर दिया था। बोथ बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। मॉडर्न टेबल में भी फर्स्ट ग्रुप में ही है दोनों, लेकिन फ़र्क क्या है, दोनों के सब ग्रुप डिफरेंट हैं। एक को ए सब ग्रुप में रखा गया है क्योंकि इनर शेल का डी ऑर्बिटल वेकेंट, और दूसरे को बी सब ग्रुप में रखा गया ड्यू टू फिल्ड इनर शेल डी ऑर्बिटल। तो चूंकि कॉपर फैमिली यानी कि कॉइनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनकी जो फाइनल शेल कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ लाइक अलकली मेटल्स और फर्स्ट ए ग्रुप। यही वजह है कि इसको फर्स्ट बी ग्रुप डेजिग्नेट क्यों किया गया, इसको भी फर्स्ट ग्रुप रखा गया। और चूंकि इनर शेल का डिफरेंस क्या था कि इनर शेल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं और जबकि अलकली मेटल्स के इनर शेल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि अलकली मेटल्स को फर्स्ट ए ग्रुप और क्वाइनेज मेटल्स को फर्स्ट बी ग्रुप रखा डेजिग्नेट किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है जिंक। अगर हम जिंक की कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो कॉपर के बाद एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, 4s2 हो जाएगा, यानी कि इनर शेल का डी ऑर्बिटल फिल होगा और आउटर शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लाइक सेकेंड ए ग्रुप, बिल्कुल कैल्शियम की तरह। कैल्शियम के इनर शेल का 3d ऑर्बिटल जो होगा वो वेकेंट होगा, जबकि जिंक का 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो अगेन ये सेकेंड ए ग्रुप, देयरफॉर इट इज़ डेजिग्नेटेड एज सेकेंड बी ग्रुप। चूंकि ये फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी हुआ तो फिर अल्टीमेटली स्कैंडियम फैमिली इज डेजिग्नेटेड एज थर्ड बी ग्रुप, एंड देन फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी ग्रुप। नाउ दीज 3 मेटल्स, ये मैंने पहले भी बताया था मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के वक्त, ये तीनों मेटल्स दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मेटल्स ड्यू टू देयर फेरोमैग्नेटिक नेचर। लिहाजा मेंडलीव ने भी इनको ग्रुप टुगेदर किया था और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी इन तीनों को एक ही ग्रुप में यानी कि 8th ग्रुप में रखा गया है। और आयरन फैमिली को ए सब ग्रुप, कोबाल्ट फैमिली को बी सब ग्रुप और निकल फैमिली को सी सब ग्रुप डेजिग्नेट किया गया है। तो दीज आर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ वी कम टूवर्ड्स द final and last topic of this or last section of this chapter, types of elements. Based on electronic configuration. The elements in the long form of periodic table are divided into 3 types. The first one, noble gases or inert gases. Or zero gases. These are different names. The zero group elements of the long form of periodic table composed of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, with atomic number 2, 10, 18, 36, 54 and 86. All these are diamagnetic gases. ये सारे के सारे diamagnetic gases हैं. What are diamagnetic? Atoms, molecules or ions having all paired electrons are called diamagnetic. Whereas atoms, molecules or ions having at least one or more unpaired electron are known as paramagnetic. So
all these inert gases, helium to radon, having all completely filled orbital with paired configurations, therefore they are diamagnetic in nature. Except helium, the general configuration of zero group elements is ns2 np6 except helium. हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2. एक्सेप्ट हीलियम, बाकी तमाम इनर्ट गैसेस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयरफॉर वी कॉल इट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. और हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज़ नोन एज डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन. दीज आर हाईली स्टेबलाइज्ड एलिमेंट्स. यही वजह है कि ये एलिमेंट्स आमतौर पे किसी के साथ ईजिली रिएक्ट नहीं करते. और यही वजह है कि अगर हम देखें शुरू की 3 इनर्ट गैसेज, इनका कोई किसी किस्म का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. जीनॉन या रेडॉन के चंद एक कॉम्प्लेक्सेस अंडर वेरी डिफ़िकल्ट और वेरी टिपिकल कंडीशन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन के साथ कुछ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, लेकिन वो भी ऑर्डिनरी वे में नहीं. नाउ द सेकंड टाइप, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. Elements from first A group to 7th A group are called representative or normal elements. They belongs to the S block and P block of the periodic table. The elements of first A group are represented with R1, means representative 1. Similarly, R2 second A group, R3 third A group, up to R7 seventh A group. The general configuration of first A group, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, what is the general configuration of first A group? NS1, NS2, NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 configuration. Why they are called normal elements? इनको normal elements क्यों कहते हैं? Because the filling of electrons in the orbitals of the shells is normal. पहले इलेक्ट्रॉन लोअर शेल के ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं और उसके बाद हायर शेल के ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर होता है वो नॉर्मल होता है. यही वजह है कि हम इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं. नाउ द थर्ड वन, abnormal or transition elements. Why we call them abnormal elements? Abnormal elements इस वजह से कहा जाता है कि ये जो D और F ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कभी भी किसी एटम के आउटर शेल में फिल नहीं होते, हमेशा इनर शेल में फिल होते हैं. तो जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर होता है दैट इज़ एबनॉर्मल. पहले इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल के ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं और उसके बाद फिर इनर शेल के ऑर्बिटल की तरफ आते हैं. मिसाल के तौर पे स्कैनेडियम, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है 4s2 3d1, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल फोर्थ शेल में चले गए, उसके बाद थर्ड शेल के d ऑर्बिटल को फिल करना शुरू कर रहे हैं. तो पहले इलेक्ट्रॉन हायर शेल में फिल हुए और उसके बाद फिर लोअर शेल के ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं. तो एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है. यही वजह है कि इनको हम एबनॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन मीन्स चेंज, यानी कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनकी वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती हैं कंपाउंड टू कंपाउंड. ठीक है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, आउटर ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स. Then inner transition.
और f block elements. सिंस d ऑर्बिटल जो है वो किसी भी एटम के आउटर शेल से एक शेल अंदर फिल होता है, पेनल्टीमेस्ट या सेकंड लास्ट शेल में, यही वजह है कि उसको हम आउटर ट्रांजिशन, और f ऑर्बिटल आउटर शेल से दो शेल अंदर भरता है। तो अगर हम कंपेयर करें d ऑर्बिटल को और f ऑर्बिटल को, मिसाल के तौर पे ये 6th शेल चल रहा है, 6s1 6s2, देन d लेंथनम 5d1 कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद सीरियम 4f1। अगर हम लेंथनम और सीरियम को कंपेयर करें तो लेंथनम 5d ऑर्बिटल 5th शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, और सीरियम 4f, यानी कि 5d और ये 4f, ये 5th शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। चूँकि f ऑर्बिटल जो होता है वो d ऑर्बिटल से भी एक शेल अंदर फिल हो रहा होता है, तो लिहाजा जो f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन का नाम देते हैं, और चूँकि d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल से एक शेल बाहर फिल हो रहा होता है इसीलिए उसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये जो d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज़, 4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ T1 सीरीज़ कहलाती है। It starts from scandium to zinc. Then T2 series starts from yttrium to cadmium, and then third transition series T3 series. This is first T1 series, this is T2 series, and this is T3 series, starting from lanthanum और कहाँ पर एंड होती है, एट मरकरी। जबकि T4 सीरीज इज़ इनकम्प्लीट, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिनियम और अनिलीनियम तक अप टू 109। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी थी, वही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहे होते हैं ये एलिमेंट्स। जबकि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर कंप्राइजेज ऑफ 2 सीरीज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लैंथेनॉइड्स और 4f सीरीज। due to filling of 4f orbital in the electronic configuration. The second one is actinoids. They are also called 5f series. Both series are composed of 14 elements each. जबकि outer transition element में जो first transition series, first, second and third, these are complete transition series composed of 10 एलिमेंट्स ईच। जबकि T4 सीरीज़ इनकम्प्लीट है, अगर 109 तक लेंगे तो 7 एलिमेंट्स आते हैं, और अगर 105 तक जाएंगे तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे, जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया। तो विद दिस ये जो है चैप्टर नंबर 1 इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने प्रेडिक्टेबल की क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया। तो ये हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन थी, और इसके साथ ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।